are going to study about the theorems of perpendicular and parallel axes. What is the use of these theorems? These theorems are used in working out the moments of inertia of some regular shaped body. Okay, these are two useful theorems relating to moment of inertia. Okay, we shall first discuss the theorem of perpendicular axis and its simple yet instructive application in working out the moments of inertia of some regular shaped body. Okay, the first theorem is theorem of perpendicular axis. This theorem is applicable to bodies which are planar. ओके, सिलेंडर में मत लगाना इस परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम को, ये सिर्फ एप्लीकेबल है प्लेनर बॉडीज़ के लिए. इन प्रैक्टिस दिस मीन्स द थ्योरम अप्लाइज टू फ्लैट बॉडीज whose thickness is very small compared to their other dimensions, that is length, breadth or radius. Okay, figure 7.29 illustrates the theorem. It states that the moment of inertia of a planar body या lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moments of inertia about two perpendicular axes concurrent with the perpendicular axis and lying in the plane of the body. अभी हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आई होगी, लेकिन ये बहुत सिंपल है. मैं अभी आपको बताती हूँ. ये डायग्राम कंसिडर करो. एक प्लेनर बॉडी है और ओरिजिन है O, तीन एक्सिस हैं. दो एक्सिस x और y जो है प्लेन में हैं और z जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, और p एक पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल है. ओके, तो आगे देखो. द फिगर शोज अ प्लेनर बॉडी एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉडी थ्रू अ पॉइंट O इज टेकन एज अ z एक्सिस. टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी. कौन सी हैं वो दोनों? x और y एक्सिस. एंड कॉन्करेंट विथ z एक्सिस, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन. कॉन्करेंट विथ z एक्सिस का मतलब है ये तीनों एक्सिस O से पास कर रही हैं. आर टेकन एज द x एंड y एक्सिस. द थ्योरम स्टेट्स दैट iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. यही तो स्टेटमेंट था जो मैंने पढ़ा था. अभी सिंपल लग रहा है ना आपको? लेट अस लुक एट द यूजफुलनेस ऑफ द थ्योरम थ्रू एन एग्जाम्पल. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स. देखते हैं. We assume the moment of inertia of the disk about an axis perpendicular to it and through its center to be known it is mr का स्क्वायर अपॉन 2. पीछे आपका टेबल दिया हुआ ना सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसमें आप डिस्क का देखो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलाउंग, तो वो उसको वैल्यू है mr का स्क्वायर अपॉन 2, where m is the mass of the disk and r is its radius. Table 7.1. The disk can be considered to be a planar body. Hence, the theorem of perpendicular axis is applicable to it. As shown in figure 7.30, we take three concurrent axes through the center of the disk O as the x, y and z axis. X and y axis lie in the plane of the disk and z axis is the perpendicular to it. By the theorem of the perpendicular axis, iz is equal to ix plus iy. Now x and y axis are along two diameters of the disk, and by symmetry the moment of inertia of the disk is same about any diameter. हाँ, ये तो ठीक है. Hence ix will be equal to iy. तो क्या iz is equal to 2 ix लिख सकते हैं बच्चों? iy is equal to ix है तो 2 ix लिख सकते हैं. तो iz is equal to हमको पता है कितना होता है, mr का स्क्वायर अपॉन 2 है ना. परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू टेबल में दी हुई है ना, mr का स्क्वायर अपॉन 2. तो अब हम इसको बराबर कर देते हैं. iz की दो वैल्यूज़ निकल के आई आपके पास. 2ix इज इक्वल टू mr का स्क्वायर अपॉन 2. तो आपको ix की वैल्यू आ जाएगी, ix विल बी इक्वल टू iz अपॉन 2.
इसका मतलब क्या आएगी वो वैल्यू, आई जेड में आपने वैल्यू रखी एम आर का स्क्वायर, तो वैल्यू निकल के आएगी एम आर का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या निकाला आपने, आई एक्स। Thus the moment of inertia of a disk about any of its diameter is mr का square upon 4. Find similarly the moment of inertia of a ring about any of its diameter. इसी तरह से आप एक moment of inertia जो है वो किसी भी diameter के along आप अपने आप निकाल लीजिए. Will the theorem be applicable to a solid cylinder? No. It is applicable only for the planar bodies. Okay. अब ये दूसरी एक्सिस के लिए डायग्राम है, पैरेलल एक्सिस के लिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। डायग्राम आप अपनी बुक में देख लो और मैं आपको समझाती हूँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू अ बॉडी ऑफ एनी शेप। इट अलाउज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस given the moment of inertia of body about a parallel axis through the center of mass of the body. We shall only state this theorem and not give its proof. We shall, however, apply it to a few simple situations which will be enough to convince us about the usefulness of the theorem. The theorem may be stated as follows. The moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass and the square of the distance between the two parallel axes. देखो मैं अभी डायग्राम में बताती हूँ आपको, as shown in figure 7.31 ये है, देखो z and z dash are two parallel axes है ना, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है a और मास ऑफ दिस बॉडी इज m। तो आई जेड डैश निकालना है ना, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए का स्क्वायर। यही तो आपने स्टेट किया थ्योरम में, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में, है ना। तो z and z dash are two parallel axes separated by a distance a. The z axis passes through the center of mass O of the rigid body. Then according to the theorem of parallel axis, Iz dash is equal to Iz plus Ma square, where Iz and Iz dash are the moments of inertia of the body about z and z dash axis respectively. M is the total mass of the body and A is the perpendicular distance between the two parallel axes. So it was a very simple theorem. अब उसके बेसिस पे एग्जाम्पल है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड। ओके, फॉर द रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपन 12। बेटा टेबल में दिया है ये, है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल का स्क्वायर अपन 12। यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई डैश विल बी इक्वल टू आई प्लस एम ए का स्क्वायर, वेयर ए जो है वो एल अपॉन 2 है। वी गेट आई डैश इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दो, आई की वैल्यू अभी आपने टेबल में से देखी, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3। ओके, दिस इज द आंसर। वी कैन चेक दिस इंडिपेंडेंटली since I is the half of the moment of inertia of a rod of mass 2m and length 2l about its midpoint. ये alternatively इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। ओके, अब एक और एग्जाम्पल है 7.12, what is the moment of inertia of a ring about a tangent to the circle of the ring। देख लो एक बार डायग्राम, ये एक रिंग है और इसके टेंजेंट से जो टेंजेंट के अलॉन्ग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। The tangent to the ring in the plane of the ring is parallel to one of the diameters of the ring. The distance between two parallel axes is capital R, the radius of the ring, है ना, वही रेडियस से जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई टेंजेंट विल बी इक्वल टू आई डायमीटर प्लस एम आर का स्क्वायर, है ना, यही थ्योरम है पैरेलल एक्सिस की। तो इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये किसका है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग प्लस
एम आर का स्क्वायर। तो जो इसको सॉल्व कर लो आप, 3/2 एम आर का स्क्वायर। तो बोथ द थ्योरम्स वर वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल फॉर रिलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेवरल बॉडीज।